Today we'll be studying about clippers as well as clampers, one of the diodes applications. Like rectifiers, you have studied in the same unit. In the first unit, only full wave rectifier and half wave rectifier will be covered. The same half wave and full wave rectifier, just like applications. Regulator, in the regulator, you have studied the GNR diode. In Zener diode, whatever the application is that regulating application, that will also come under one of the types of applications of diode. Now coming to clippers as well as clampers, here uh, this is somewhat different application. Let's just see how this is. Yeah, clippers as well as clampers. Coming to clipper, can you see my screen? My screen visible? Yes, sir. Yeah. No, what actually is clipper? Clipper is a type of diode network only, but ability to clip off a portion of the input signal. Suppose if I am sending X signal, some portion, either it is maybe positive side or from the negative off cycle, some portion of that input signal will be clipped out, and the remaining part of the waveform will be displayed at the output. This type of circuit is known as clipper circuit. So if you see half wave rectifier, the second half, nothing but negative half cycle, the half wave rectifier was in reverse bias. Nothing but half wave rectifier is also one of the clipper types of clipper. Not actually clipper, it is one of the types of clipper. The half wave rectifier is an example of simplest form of diode clipper with one resistor and a diode. Where resistor is your load and diode is your the thing which you are giving the input. You, if you see this series in clipper, we have different types: series clipper, shunt clipper, series positive clipper, negative clipper. Like the different types of clipper are there. We'll start from the basic clipper and the basic simple circuit, and then we'll move forward by increasing the uh, positive. We'll increase the types, or we'll study the types later. So basically, depending upon the orientation of the diode, orientation is nothing but anode here, cathode here. This is one orientation. Other orientation, cathode here, anode here. Orientation here is in series. सप्लाई के सीरीज में डायोड है, इसलिए इस क्लिपर को बोलते हैं सीरीज क्लिपर. A series clipper and its response for two types of alternating waveforms are provided. This type of clipper is called series clipper. You can see this is one of the examples of series clipper. Suppose if I am applying a square wave voltage of positive peak as V and negative peak as minus V to this circuit. So as the diode is positive, the positive off cycle, during the positive off cycle, your voltage VI is greater than 0, isn't it? The portion of this one. ये पोर्शन पूरा ग्रेटर देन 0 पे आता है, और ये पोर्शन जो 0 के नीचे है, दिस विल कम अंडर VI लेस देन 0. सपोज आई एम टेकिंग टू कंडीशंस. एक कंडीशन ले रहा हूँ VI ग्रेटर देन 0, और दूसरा कंडीशन ले रहा हूँ VI लेस देन 0. ठीक, greater than or equal to 0. Greater than or equal to 0. Whenever my waveform is VI greater than or equal to 0, my diode is in forward bias, because positive connected to anode will make the diode forward bias. Whenever it is forward bias, it will just act like a short circuit. Whenever it is short circuit, assuming it has an ideal diode, the drop across this diode will remain 0. Assuming it has ideal diode, remember. Let us assume the diode as ideal and the drop across this one is 0. Then what is V0? What happens to the V0?
when diode is forward bias. What is V naught in terms of VI? बताओ. The current direction will be like this. Like this. Tell me what is V naught in terms of VI? V naught का वैल्यू क्या होगा? ये डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया. यहाँ पे वोल्टेज VI है. यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा? अरे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा यहाँ पे? ये शॉर्ट सर्किट है भाई. ये ग्राउंड कनेक्टेड है. यहाँ पे भी ग्राउंड है. ये शॉर्ट सर्किट है. यहाँ पे वोल्टेज जितना होगा यहाँ पे कितना होगा? बोलो तो. VI. Very good. VI, sir. Because it is short circuited, right? V naught will be equals to VA. So my output waveform V naught is given by this one, because it just replicates your input waveform. Up to which point? Up to here. Up to here, whenever your VA is greater than 0. Now, next condition is VA less than 0. VA less than 0 क्या आएगा? इस पार्ट के बाद आएगा. इस वाले पार्ट जो इस तरफ है, ये वाला पार्ट VA लेस देन 0. जब VA लेस देन 0 है तो आपका ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा. जब नेगेटिव कनेक्टेड टू एनोड विल मेक द डायोड रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस. Reverse bias. रिवर्स बायस. So during negative half cycle, your diode is in open circuit, isn't it? Whenever it is reverse bias, let us assume ideal diode, it is in open circuit. When there is open circuit, is there any current flowing through the resistor? कोई करंट फ्लो होगा यहाँ पे ओपन सर्किट होने के बाद डायोड. यहाँ पे सीरीज में ओपन सर्किट हो गया. Then there is zero current flowing. Then V naught कितना होगा? 0. Nothing but your waveform when VI greater than 0 will be this. So यहाँ पे क्या हुआ? This negative part has been clipped off, मतलब removed. ये इनपुट मैं दे रहा हूँ लेकिन आउटपुट ये आ रहा है. तो मेरा जो नेगेटिव पार्ट था ये वाला पार्ट निकल गया. तो दिस टाइप ऑफ क्लिपर इज कॉल्ड सीरीज क्लिपर. This type of clipper is called series clipper. अगर मैं यहाँ पे साइनोसॉइडल दूंगा मेरा आउटपुट कैसे आएगा? साइनोसॉइडल दूंगा तो बस during positive half cycle it will conduct, during negative half cycle it will not conduct. Just like a half wave rectifier. हमने half wave rectifier का waveform भी ऐसे ही देखा. So half wave rectifier is a simple example of your basic series clipper. This type of circuit is called series clipper circuit. This type of circuit is called series clipper circuit. Why series? Because the diode is in series with your input voltage. Hence the circuit is called series clipper circuit. ये क्लियर है सबको? ये क्लियर नहीं हो तो आगे कुछ नहीं समझ आएगा. ये तो बेसिक सर्क्यूट है, ये समझ आने चाहिए. You are clear? Then we'll move to the other. Similarly, अगर मैं इनपुट वेवफॉर्म ये दूंगा, ट्रायंगुलर वेव दूंगा, फिर ट्रायंगुलर वेव में भी फर्क नहीं पड़ेगा. Whenever your VA is greater than 0 up to this part, your waveform will be, your diode is forward bias, V naught will be equals to VA. It will just follow the input. Whenever VA is less than 0 in this part, during VA less than 0, what happens? That waveform will be clipped off because diode is not conducting and the current flowing will be 0 and V naught will remain 0. Hence, your diode positive half cycle will be intact, but negative half cycle will be clipped off.
This type of clipper is called series clipper circuit. This type of clipper is called series clipper circuit. रेस्पॉन्स नहीं हो तो फिर कोई फायदा नहीं है, ये टॉपिक आपका सिलेबस में है ही नहीं, इवन गेट के लिए और उसके लिए काम आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, यू कैन चेक योर सिलेबस. So if you don't respond, I will treat like you are not showing interest, then it is useless to teach. तुम मेहनत क्यों करें अगर रेस्पॉन्स नहीं होगा. Now coming to the circuit. Here, if you observe the circuit, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. यहाँ पे एक छोटा सा पोटेंशियल लगा है एक्स्ट्रा, जो पहले नहीं था. इस पोटेंशियल को हमने स्मॉल वी माना, तो उस पोटेंशियल इस डीसी पोटेंशियल, दिस इज डीसी पोटेंशियल, तो वो डीसी पोटेंशियल लगभग मानते हैं समथिंग लाइक योर दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. क्लियर? अगर इस डीसी पोटेंशियल को मुझे ग्राफ में मेंशन करना पड़ा, ये लगभग ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे आएगा. एज दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल, मैं एज्यूमिंग यहाँ पे कुछ आएगा, कोई वैल्यू ले लेते, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा. लेट अस अज्यूम यू आर अप्लाइंग 5 sin omega t, where 5 indicates your Vm. If you are observing sinusoidal waveform, the sinusoidal waveform is given by Vm sin omega t. Let us assume, एक वैल्यू अज्यूम करते हैं, तो दैट समझने में आसान हो जाएगा. तो ये डीसी पोटेंशियल को मैं अज्यूम कर रहा हूँ लगभग 2.5 वोल्ट अज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ 2.5 वोल्ट, और मेरा पीक वोल्टेज है Vm, वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 5. तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव क्या होगा, -5 वोल्ट, और मेरा 2.5 वोल्ट आएगा लगभग इसके आधे, एग्जैक्टली एट द हाफ, बिटवीन 0 to 5 में लगभग आधे पॉइंट से यहाँ पे मेरा 2.5. तो 18 दिन के लिए पासवर्ड क्या है? बट the first step is to find out in which interval of the input the signal of the diode is in forward bias. In which interval your signal of the diode is forward bias. The direction of the diode suggests the input signal Vi must be positive to run on. Obviously, यहाँ पे डायोड इस पोजीशन पे है, डायोड को फॉरवर्ड बायस करना है, तो मेरा ये पोटेंशियल पॉजिटिव होनी चाहिए, तब भी मेरा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस होगा. अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो मेरा डायोड रिवर्स बायस होगा. और the DC supply further requires the voltage Vi to be greater than V volt to turn on the diode on. The negative region of the input signal turns the diode off. Therefore, in the negative region, diode is an open circuit. Same circuit है. पहले हमें इससे पहले वाला सर्किट में ये वाला पोटेंशियल नहीं था. जब ये वाला पोटेंशियल नहीं था, हमने दो ही केसेस अज्यूम करे, एक VI ग्रेटर देन 0, सीधा डायोड फॉरवर्ड बायस, दूसरा VI लेस देन 0, सीधा डायोड रिवर्स बायस. यहाँ 0 था, उस 0 की जगह आप 2.5 है, बस इतना फर्क. VI ग्रेटर देन 0 2.5, VI लेस देन 2.5. 2.5 क्यों? यहाँ पे पोटेंशियल एक्स्ट्रा लगाया गया. तो अगर इसके नीचे है तो पहले अज्यूम करते हैं VI ग्रेटर देन 2.5. VI greater than 2.5 is nothing but this area, isn't it? VI greater than 2.5 सिर्फ ये एरिया. तो इस एरिया में VI greater than 2.5 मतलब this anode is greater than 2.5. Anode is greater than 2.5, nothing but positive potential. Whenever it is positive potential, your diode is in forward bias condition. Whenever it is forward bias, the current starts flowing like this. When current starts flowing, it is just like this is how much? 2.5.
डायोड इज एन आइडियल डायोड, शॉर्ट सर्क्यूट कंडीशन। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 0 है, यहाँ पे 2.5 है। तो आप केवीएल अप्लाई करो, वी नॉट क्या आएगा, वी नॉट आएगा, वी नॉट इज इक्वल टू वी आई माइनस 2.5। ये जो वोल्टेज है ये आपके किस में अप्लाई होगा, किस में, आपके आउटपुट में। अगर वी आई लेस देन 2.5 है, वी आई लेस देन 2.5 पोर्शन क्या है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। इवन -1 -2 इज ऑल्सो लेस देन 2.5। ऑब्वियसली लेस देन 2.5 का पोर्शन पूरा है। उस टाइम पे क्या है, whenever vi less than 2.5 there will be a negative potential here, obviously, right? When vi less than 2.5, let us assume something like 0 minus 2.5, 0 minus 2.5 will be minus 2.5, minus 2.5 नेगेटिव पोटेंशियल में एनोड को अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा डायोड जो है रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस हो गया, तो V नॉट विल बी इक्वल टू 0। तो योर वेवफॉर्म विल रिमेन लाइक दिस। सिर्फ 2.5 से ग्रेटर है तो फॉलो करेगा, अदरवाइज it will remain 0. It is 0, right? When it is open circuit. Now let us see the output waveform. Output waveform कैसे आएगा? Whenever Vi greater than 2.5, your diode is in forward bias condition. If you apply V naught, you will be getting Vi minus 2.5. Whenever your diode is in reverse bias condition, reverse bias nothing but यहाँ पे open circuit. Whenever this is open circuit, V naught will be, यहाँ पे KVL अप्लाई करो, KVL अप्लाई करो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Shall I repeat? Shall I repeat? No, sir. यस सर, एक बार रिपीट कर। ध्यान से देखो, अगर ये नहीं समझ आएगा ना आगे, और भी अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तो समझ में नहीं आएगा। हम अभी फिलहाल अज्यूम कर रहे हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस है, ये जो है ये डायोड है, यहाँ पे डायोड जो है वो आइडियल मान है, आइडियल मान के चल रहा है, आइडियल मान के चल रहा है। जब ये नहीं था तो हमारा सीधा सीधा आया था, वी आई ग्रेटर देन 0 पे डायोड फॉरवर्ड बायस था, वी आई लेस देन 0 पे रिवर्स बायस था। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं 5 साइन ओमेगा टी मेरा इनपुट वोल्टेज अज्यूम कर रहा हूँ। तो 5 साइन ओमेगा टी क्या इंडिकेट करता है, मेरा पॉजिटिव पीक जो है वो 5 है और नेगेटिव पीक जो है -5। ये मेरा 5 साइन ओमेगा टी इनपुट वेवफॉर्म बताता है। ये अज्यूम कर रहा हूँ 5 साइन ओमेगा टी, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा जो डीसी पोटेंशियल है उसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ 2.5 वोल्ट। उसी 2.5 वोल्ट को मैं इसी ग्राफ में इनपुट में कैसे दिखा सकता हूँ, लगभग यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये बीच में आएगा ना, समथिंग लाइक 0 1 2 3 लाइक दैट, ऐसे आएगा। यहाँ पे 5 पहुंचेगा, फिर 5 के बाद 4 3 2 1 0, फिर -1 -2 -3 -4 -5, फिर -4 -3 -2। दिस इज योर वेवफॉर्म। तो 2.5 प्लस 2.5 मेरा कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा। अगर मेरा पोटेंशियल अगर दिया होता ऐसे, नेगेटिव इस तरफ और पॉजिटिव इस तरफ, तो मैं अज्यूम करता दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल, दिस पोटेंशियल इज योर नेगेटिव पोटेंशियल, दिस इज -2.5, तो मैं यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ। अब यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो आई विल इंडिकेट दिस इज सी, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। सपोज एक केवीएल अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, तब भी मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि मेरा एनोड ये है और कैथोड ये है। यहाँ पे जितना पॉजिटिव होगा, ये P है, ये N है। Whenever P is greater than N, then only your diode is in forward bias condition. P greater than N करना है तो मेरा यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल करना पड़ेगा यहाँ से कंपेयर करके। तो यहाँ पे
पॉजिटिव होगा तभी होगा व्हेनेवर दिस दोनों का डिफरेंस जो है पॉजिटिव होगा। दोनों का डिफरेंस का पॉजिटिव कब होगा? व्हेनेवर योर VI is greater than 2.5, right? फर्स्ट केस, लेट अस अज्यूम दिस इज केस 1। केस 1 में जो है आपका VI जो है ग्रेटर देन 2.5। VI ग्रेटर देन 2.5 क्या होता है? फिर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Let us assume something like 3 volts. तो 3 volts VI greater than 2.5 हो गया। तो यहाँ पे KVL अप्लाई करोगे, -3 + 2.5 क्या आएगा? It will be minus minus point -0.5. point five. -0.5 is your voltage that is appearing across this one. -0.5 is nothing but negative potential at anode. Nothing but your diode is in reverse bias condition. Let us assume something like इससे कम अज्यूम करते हैं, 2 वोल्ट्स। 2 वोल्ट्स अज्यूम करते हैं। केवीएल अप्लाई करो, यहाँ पे केवीएल अप्लाई करो तो क्या हो गया? यह -2 + 2.5 प्लस आपका डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, जो भी वोल्टेज होगा, लेट अस अज्यूम VD इज इक्वल टू 0। तो -2 + 2.5 विल बी 0.5। तो VD के अक्रॉस कितना होगा? -0.5 होगा। तो यहाँ पे ये प्लस VD था, तो प्लस VD इज इक्वल टू 0 था। व्हाइट स्क्रीन पे कर करो, ठीक। ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल डायोड रेसिस्टर। अगर एक बार समझ आ जाए ना, आप यू कैन प्ले विद द सर्किट। अगर समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं समझ आएगा। आगे अगर अपने आप करने लगोगे, अगर ये चीज समझ आ जाए, ये है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ 5 sin ओमेगा, राइट? बहुत से लिखना बड़ा टफ है। ये 2.5 है, ठीक। और यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ समथिंग लाइक योर इनपुट वेवफॉर्म ऐसे है। ये आपका इनपुट वेवफॉर्म, एक साइकिल ले रहा हूँ मैं। ये आपका हो गया 5 और ये आपका हो गया -5। नो समथिंग लाइक 2.5 comes here. When 2.5 comes here, now let us assume छोटा एक वोल्टेज अज्यूम करते हैं, यहाँ पे लगभग 3 वोल्ट होगा। तो 3 वोल्ट को मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो मेरा पहले केवीएल इक्वेशन क्या होगा? -VI + V, क्योंकि ये पॉजिटिव है। यही था ना सर्किट में, क्या कुछ और था? हाँ, पॉजिटिव था। अरे यार, चला गया। सॉरी, कैसे चला गया? I lost it. चलो इसी में बताता हूँ। ये था ना, ये है आपका। तो मेरा केवीएल इक्वेशन क्या हो गया? -VI + V डीसी पोटेंशियल समथिंग, ये पूरा वोल्टेज को मैं V प्राइम अज्यूम करता हूँ। ये V प्राइम जब पॉजिटिव होगा तभी मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। तो प्लस V प्राइम इज इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन है। मेरा V प्राइम क्या हो गया? V प्राइम इज इक्वल टू VI - V। जब VI - V ये पॉजिटिव होगा तभी भी मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, अदरवाइज रिवर्स बायस होगा। VI - V पॉजिटिव कब होगा? व्हेनेवर योर
VI is greater than 2.5, isn't it? Your VI minus DC potential is equals to your voltage across the diode which is making the forward bias. V dash जब पॉजिटिव होगा तभी आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होगा. तो ये कब पॉसिबल होगा? जब आपका VI हमेशा V से ज्यादा हो. यहाँ पे VI हमने अज्यूम किया था 5 sin ओमेगा t, 5 ग्रेटर देन 2.5, मतलब जब भी ये वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज जो है जब ये 2.5 से ज्यादा होगा तभी आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होगा. सिमिलरली रिवर्स बायस में क्या है? जब V dash is less than 0, your diode is in reverse bias, nothing but open circuit. In open circuit क्या है? आपका VI less than V होता है. VI less than V क्या होता है? ये पार्ट पूरा, ये जो इसके नीचे है पूरा VI less than 2.5 मतलब 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0. माइनस 0.5 भी आएगा, -2 भी आएगा, -5 भी आएगा. ये सब कुछ आपका VI less than 0. मतलब during forward bias only this part will be active. During reverse bias this whole will be in. Is it clear? अब ये आपका forward bias voltage है. This is your 2.5 volts. During whenever VI is greater than 2.5, your diode is in forward bias condition. डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन है तो आपका सर्क्यूट क्या होगा? ये हो गया आपका 2.5, ये तो फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा. और डायोड शॉर्ट सर्क्यूट हो गया और यहाँ पे आपका रेसिस्टर है और ये आपका इनपुट वोल्टेज है. नाउ टेल मी व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज? V नॉट क्या होगा डायोड फॉरवर्ड बायस होने के बाद? ये टोटल वोल्टेज है. V नॉट क्या होगा अगर डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो कितना हो गया? VI minus 2.5. 2.5. VI minus 2.5 is your output voltage whenever that diode is forward bias condition. तो दूसरा कंडीशन ये था whenever V dash is less than 0, nothing but VI is less than V, मतलब ये पार्ट पूरा यहाँ से लेके यहाँ पूरा, उस टाइम पे V नॉट क्या था? तो उसके लिए KVL इक्वेशन क्या होगा? उसके लिए KVL इक्वेशन होगा आपका. कैन यू राइट KVL इक्वेशन? तभी ये आपसे ध्यान रखो, अभी तक तो थोड़ा थियरी पार्ट था, अब से अगर क्लास अटेंड कर रहा अनिल आपका, एक छोटा सा कॉपी लेके बैठो और नाउ आई एम ड्राइंग द इक्विवेलेंट सर्क्यूट व्हेन द डायोड इज इन रिवर्स बायस. रिवर्स बायस में क्या है? ये माइनस पोटेंशियल है मेरा और ये डायोड मेरा रिवर्स बायस. रिवर्स बायस नथिंग बट देयर विल बी रिवर्स वोल्टेज that will be appearing across the diode. As it is ideal diode, this is just like a open circuit, infinite voltage will be appear. This is your resistor. ठीक है, यहाँ पे आपका रेसिस्टर है और यहाँ पे आपका V नॉट आ रहा है, ये आपका VI है. ये कौन सा कंडीशन है? रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस? रिवर्स बायस. रिवर्स बायस. यहाँ पे VI लेस देन V है, ग्रेटर देन V है? Greater than V. VI greater than V is forward bias, right? VI less than V is your reverse bias condition. ये आपका सर्क्यूट है, ओपन सर्क्यूट हो गया. ओपन सर्क्यूट हो गया तो इसका मतलब है करंट यहाँ पे कितना है? 0. यहाँ पे करंट 0 है तो ये जो भी वोल्टेज है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, क्योंकि करंट 0 है लेकिन वोल्टेज 0 नहीं है ना. करंट 0 है, वोल्टेज 0 नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज अपीयर हो जाएगा, ये बोल रहा, और V नॉट विल रिमेन एज इट इज. तो V नॉट विल रिमेन 0. V नॉट विल रिमेन 0 मतलब आपका जो आउटपुट वेवफॉर्म है, whenever your circuit is, whenever your VI is in less than 0.5, then less than 2.5, your waveform will remain 2.5, and whenever it is greater than 2.5, it will just follow the input voltage
Vi minus 2.5. Vi minus 2.5 is your input voltage and it will remain like. तो मैं इनपुट दे रहा था एक साइनोसाइडल वेवफॉर्म और मुझे आउटपुट आ रहा है ये वाला. तो दिस टाइप ऑफ सर्क्यूट इज नोन एज series clipper circuit because this negative one will be clipped off and the potential was appearing. अगर आप previous circuit देखोगे ये नहीं था, isn't it? जब ये नहीं था मतलब इस 2.5 की जगह 0 था, बस इतना ही फर्क था. जब 2.5 की जगह 0 था तो आपका वेवफॉर्म आ रहा था सीधा ऐसे. क्यों? 0 से जो भी ग्रेटर था वो इनपुट वोल्टेज को फॉलो कर रहा था, जो 0 से जो भी लेस था वो 0 था, वो 0 से जो लेस है वो 2.5 होगा. यहाँ पे वहां पे 0 था, बस इतना फर्क. अगर मैं 2.5 की जगह कुछ और वोल्टेज लगाऊंगा, लेट अस से समथिंग लाइक नेगेटिव पोटेंशियल मैंने अप्लाई किया. नेगेटिव पोटेंशियल मतलब टर्मिनल चेंज कर दो. -2.5 अप्लाई किया तो -2.5 से जो भी ग्रेटर है वो फॉरवर्ड बायस होगा और -2.5 से जो लेसर है वो रिवर्स बायस होगा. तो आपका इनपुट वेवफॉर्म में अगर मैंने टर्मिनल्स चेंज किया तो क्या होगा, लेट अस चेक. अगर टर्मिनल चेंज कर दिया तो मेरा इनपुट वेवफॉर्म ये है, ये मेरा इनपुट वेवफॉर्म. तो -2.5 क्या होगा, यहाँ पे आएगा लगभग यहाँ पे -2.5 आएगा. और ये मैं किस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, सेम सर्किट को मैंने डीसी पोटेंशियल का टर्मिनल चेंज कर दिया, ये -5. तो आपका सर्किट जो था ये था माइनस के लिए नेगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे, और डायोड फॉरवर्ड बायस, और डायोड यहाँ पे होगा, ठीक है. और यहाँ पे आपका रेसिस्टर, यहाँ पे आपका वोल्टेज V0, यहाँ पे आपका VA, ठीक. नो दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल. तो यहाँ जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है वो पॉजिटिव होगा तभी आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होगा. लेट अस से इट इज वी प्राइम. तो लेट अस राइट KVL हियर. इस लूप में KVL लिखो -Vi, और ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल के कारण मैं -V ले रहा हूँ, प्लस V प्राइम इज इक्वल टू 0. तो V प्राइम इज इक्वल टू V प्लस VA, right? Whenever this is greater than, then only your diode is in forward bias. Whenever it is less than this value, your diode is in reverse bias condition. तो यहाँ पे आपका जो होगा, आपका वेवफॉर्म यहाँ पे you will get this part will be clipped off and the remaining will remain as it is. As this part will be clipped off and will remain -2.5 and the remaining will be same as your input. तो आपको एक एग्जांपल दिखा दें और जस्ट समझ आएगा. ये आपके पास है, मैंने Moodle पे भी अपलोड किया है. You can refer this. See, पोटेंशियल वाला, ये तो करंट वाला है. यहाँ पे अलग है. या ये भी देख सकते हो एग्जाम्पल. सपोज यहाँ की जगह पोटेंशियल यहाँ पे चेंज कर दिया रेजिस्टेंस के सीरीज में, तो क्या हो गया, VA ये नेगेटिव है, ये सर्क्यूट जो है यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड है. ये पॉजिटिव कब होगा, whenever this voltage is positive then your diode will be reverse forward bias, otherwise it will be reverse bias. जब ये पॉजिटिव कनेक्टेड टू कैथोड होगा then it will be reverse bias. यहाँ पे पोटेंशियल V दिखा है, समथिंग लाइक V यहाँ पे आएगा अज्यूम करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ दिख भी नहीं रहा. Yeah.
ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स बन जाएगा आपको बेस्ड ऑन द सर्किट। अब दिख रहा है थोड़ा क्लियरली, मैं इसके ऊपर भी ड्रॉ करूंगा तो देख सकते हैं। ये अलग आपका कैथोड है, ये दिस इज योर एनोड, दिस इज योर डायोड एंड पोटेंशियल यहाँ पे है V पोटेंशियल, दिस V पोटेंशियल इज दिस वन एंड हियर यू हैव रेसिस्टर, दिस इज योर रेसिस्टर एंड दिस इज योर VI, दिस वोल्टेज इज VI। यहाँ पे मेरा इनपुट वोल्टेज आ रहा है ऐसे साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, लेट अस अज्यूम ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म इज योर इनपुट। नाउ जस्ट थिंक, ध्यान से देखो, और मैं उसी इनपुट वेवफॉर्म में मेरा ये जो V पोटेंशियल है ना, इसको मैं ड्रा कर रहा हूँ, इसको समथिंग लाइक इस इनपुट वोल्टेज में मेरा V लगभग यहाँ पे आ रहा है, मुझे अज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो दिस इज माई V, दिस इज Vm of my input voltage. This waveform belongs to my input voltage. Let me change the color. So this is my your V. थोड़ा वैल्यू से अज्यूम करते हैं, अगेन 5, यहाँ पे 2.5 अज्यूम करते हैं, इस पोटेंशियल को 2.5, यहाँ पे 2.5, इसका मतलब है लगभग यहाँ पे एनोड पे आपका 2.5 है और कैथोड पे आपका VI है। आप एक चीज बताओ, अगर डायोड फॉरवर्ड बायस होना है तो VI ग्रेटर देन 2.5 होनी चाहिए, VI लेस देन 2.5 होनी चाहिए? सर ग्रेटर देन 2.5। ये एनोड है, ये कैथोड है। हमेशा डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में एनोड से लेके कैथोड तक कंडक्ट करता है, एनोड से लेके कैथोड तक कंडक्ट करता है, ये हमेशा ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू दिस वन। तो डायोड कब होगा फॉरवर्ड बायस? ये ज्यादा होनी चाहिए, मतलब ये कम होनी चाहिए ना। VI लेस देन 2.5 पे आपका डायोड फॉरवर्ड बायस है, सिंपल है, क्लियर है। VI जब लेस होगा तभी आपका कैथोड का पोटेंशियल कम होगा, कैथोड का पोटेंशियल कम होगा और एनोड का ज्यादा होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। इज इट क्लियर? Anode potential should be higher than that of your cathode potential. That will happen only if VI is less than 2.5, isn't it? क्योंकि 2.5 जो है मेरा एनोड के पास है, नॉट कैथोड। कैथोड के पास जो है वो आपका इनपुट वोल्टेज है, तो ये कम होनी चाहिए, ये ज्यादा होनी चाहिए। कब पॉसिबल होगा? ये ज्यादा होनी चाहिए, मतलब दिस विल बी ग्रेटर। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. या VI लेस देन 2.5 में आपका डायोड जो है फॉरवर्ड बायस। सिमिलरली वाइस वर्सा, व्हेन VI ग्रेटर देन 2.5 your diode will be reverse bias, isn't it? VI less than 2.5 your diode will be reverse bias. Reverse bias nothing but open circuit, forward bias nothing but short circuit. Let us consider VI less than 2.5. VI less than 2.5 का पार्ट कहाँ से कहाँ तक आएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा VI लेस देन 2.5 दिख रहा है। ये जो है ना, ये लाइन के नीचे से ये पूरा जो है आपका क्या है, कौन सा पार्ट है? ये जो पिंक वाला है वो सारा पार्ट जो है VI लेस देन 2.5, isn't it? ये जो पार्ट है, जैसे कि येलो वाला, ये वाला पार्ट क्या है? VI Greater than 2.5. ग्रेटर देन 2.5। सिंपल है ना, ये तो समझ आ रहा होगा इनपुट वेवफॉर्म से। 5 आपका मैक्सिमम वैल्यू है, तो दोनों को एनालाइज करना है कि आउटपुट वेवफॉर्म मेरा कैसे आएगा।
बता सकते हो कोई? हाउ विल येलो बी वाला द पार्ट आएगा सर। आउटपुट? सिंपल। आप अगर आपका पहले कंफ्यूजन है, VA ग्रेटर देन 2.5 पे आप सर्क्यूट रीड्रॉ करो। रीड्रॉ करो मतलब VA ग्रेटर देन 2.5 पे मेरा सर्क्यूट जो है रिवर्स बायस है। VA लेस देन 2.5 पे मैं सर्क्यूट रीड्रॉ कर रहा हूँ। VA लेस देन 2.5, VA लेस देन 2.5, योर डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, नथिंग बट यहाँ पे शॉर्ट सर्क्यूट हो गया। तो यहाँ पे रेजिस्टर है, यहाँ पे 2.5 वोल्ट है, तो आपका KVL अप्लाई करो। KVL क्या होगा? -VI। KVL क्या होगा? This is your diode short circuited. This condition is ये गेट के लिए भी, ES के लिए, एग्जाम्स के लिए काफी जगह पूछा जाएगा। अभी एक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम, दो पोटेंशियल हुआ तो V1 V2 लगाया, तब क्या होगा, वेवफॉर्म क्या होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए गेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड के ऊपर तो नॉर्मली ये क्वेश्चन आ ही जाता है। VA less than 2.5, my diode is in forward bias condition. So I am redrawing the circuit, assuming the diode is in forward bias, nothing but short circuit, and this is my VA. VA nothing but by VA less than 2.5. VA less than 2.5 जो पार्ट है वो आपने देख लिया, VA less than 2.5, this pink region. And next, coming to redrawing the circuit, my diode is in forward bias condition. Now this is my resistor. Yeah, this is my 2.5 वोल्ट। क्लियर? ये तो फिक्स्ड है। और वोल्टेज V0 क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज माई V0। V0 इज नथिंग बट दिस इज VA। नाउ आई एम ड्रॉइंग द इनपुट एंड करस्पॉन्डिंगली आउटपुट भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे मेरा 2.5, तो मैं एनालाइज जो भी कर रहा हूँ वो इसके नीचे का कर रहा हूँ, इसके नीचे का कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है यहाँ पे शॉर्ट सर्क्यूट है, तो V0 इज इक्वल टू क्या होगा? V0 क्या होगा यहाँ पे बताओ? यहाँ पे शॉर्ट सर्क्यूट है, मतलब वोल्टेज 0। V0 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? डायोड फॉरवर्ड बायस है, VA लेस देन 2.5 कंडीशन है, मतलब कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट जो पिंक रीजन जो भी है वो पूरा पार्ट VA लेस देन 2.5, वो सारे कंडीशन में आपका डायोड फॉरवर्ड बायस है, नथिंग बट शॉर्ट सर्क्यूट। V0 क्या है? अरे सीधा सीधा ना, शॉर्ट सर्क्यूट है। V0 इज इक्वल टू VI। Am I correct? V0 is equals to VI. Can I say it? क्योंकि V0 जो है आप यहां से लेके यहां तक कैलकुलेट कर रहे हो, ये पूरा V0 है। फॉरगेट अबाउट दिस वन, रेसिस्टर एंड यहाँ पे कुछ भी हो, ये पूरा यहां से यहां तक आपका V0 है, और यहाँ पे शॉर्ट सर्क्यूट है। तो V0 इज इक्वल टू क्या होगा? KVL अप्लाई करो ना, KVL अप्लाई करो। KVL क्या अप्लाई करोगे? -VI प्लस V0 is equals to 0. V0 is equals to VI. Yes, sir. V0 is equals to VI, nothing but आपका आउटपुट वेवफॉर्म whenever VI less than 0.2.5 है, तो आपका वेवफॉर्म कैसे आएगा? It will follow the input, right? Am I right? It will follow the input whenever your VI is less than 2.5. This is your output whenever it is forward bias. सपोज रिवर्स बायस पे कंडीशन लेते हैं। रिवर्स बायस पे क्या है, यहाँ पे डायोड इज ओपन,
diode is open and this is Vi, clear, and this is resistor. ये रिवर्स बायस की सर्किट है, मतलब whenever your Vi is greater than 2.5, greater than 2.5 का पोर्शन क्या है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो आपका वेवफॉर्म क्या होगा, ये आपका होगा पोटेंशियल कितना भी हो, 2.5 या जो भी हो, ठीक। और ये आपका V0 है, ठीक है, ये आपका V0 है। V0 क्या होगा, ये ओपन सर्किट है, ठीक। नो करंट इज कमिंग, नो करंट इज कमिंग, नथिंग बट यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा, ड्रॉप कितना होगा, 0। तो V0 का वैल्यू क्या हो गया, 2.5 पोटेंशियल प्लस I into R, and I am saying diode is reverse bias. So what is the value of I 0. going through the resistor? 0 0 into R कितना है, 0. तो V0 क्या हो गया, 2.5. 2.5 is nothing but a DC voltage, DC potential है ना, Yes, sir. DC potential स्ट्राइट लाइन रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मेरा VA ग्रेटर देन 2.5 पे मेरा जो आउट वेवफॉर्म है, आउटपुट क्या आएगा, 2.5 आएगा ना। ये वाला पार्ट पूरा क्लिप हो जाएगा, ये पूरा पार्ट जो है वो रिमूव हो गया। तो आपका आउटपुट वेवफॉर्म कैसे बना, मतलब जो ये वाला पार्ट था ये निकल गया या नहीं निकला, आउटपुट में निकल गया सर. निकल गया। तो क्या हो गया यहाँ पे, some part of the positive is been clipped. This type of clipper is called positive series clipper. Series क्यों है, क्योंकि डायोड मेरा सीरीज में था, सप्लाई तो सीरीज में था, इसलिए सीरीज क्लिपर। और पॉजिटिव कैसे आया, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो गया, इसलिए वो पॉजिटिव क्लिपर आया। तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर। अगर नेगेटिव पार्ट क्लिप हो जाता, अगर मेरा सर्क्यूट ऐसे होता कि ऐसे आता, तो इसका मतलब है मेरा इस वाला पार्ट रिमूव हो गया। तो इसको वो क्या बोलते हैं, सीरीज व्हाट, नेगेटिव क्लिपर। आपको एग्जाम में वेव फॉर्म पूछ के सर्क्यूट बनाने को बोल सकते हैं, और सर्क्यूट बोल के वेव फॉर्म बनाने को बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं। क्लियर, लाइक दैट यू विल सॉल्व डिफरेंट क्लिपर सर्क्यूट। तो आज का ये है, अगर आप कल और परसों तो मेरा क्लास नहीं है, तो डू प्रैक्टिस different circuit. I will post it in your Moodle. आप डिफरेंट सर्क्यूट प्रैक्टिस करो तो क्लियरली आपको वेवफॉर्म कैसे आएगा। अगर खुद करोगे, कॉपी करोगे तो कभी नहीं समझ आएगा। खुद प्रैक्टिस करो, कितना, अगर एक बार आदत हो गया ना, फिर यू विल प्ले विद द सर्क्यूट, मजा आएगा आपको करने में, ये पक्की बात। ट्राई करना शुरू करो, विल यू डू इट। 3-4 सर्क्यूट दूंगा, उस सर्क्यूट को आप बनाना शुरू करो, देन यू विल गेट टू नो कितना आसान है और कितना अच्छे से बना सकते हैं। यू कैन रेफर प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस लाइक दैट। एक साल में एक क्वेश्चन तो क्लिपर और क्लैंपर के ऊपर होता है। अगर अब समझ आ जाएगा ना, क्योंकि अगर एक बार अब समझ आ गया तो आपको जैसे गेट का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे। बस आपको इंटरेस्ट शो करनी है, इंटरेस्ट शो करो। मैं आपको पूरा ये क्लिपर और क्लैंपर का टॉपिक इवन गेट के लिए भी तैयार करूँ। दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू शो इंटरेस्ट। मैं आज एक छोटा सा क्विज दूंगा, उसमें आराम से सॉल्व करो, कोई टाइम लिमिट नहीं रखूंगा, क्योंकि इट विल टेक टाइम। मतलब एकदम से समझ नहीं आएगा, आपको क्लियर नहीं होगा कोई चीज। उस चीज को मैं पहले आपको नोट्स अपलोड कर दिया है, आपको मूडल में चेक कर लेना। क्लिपर एंड क्लैंपर नोट्स करके अपलोड किया है, उसमें एग्जांपल्स मिल जाएगा।
और उसके अलावा मैं एक छोटा छोटा सर्किट दूंगा, 5 क्वेश्चंस दूंगा, बस सिंपल 5 क्वेश्चन आज के असाइनमेंट में। शाम को टाइम लिमिट नहीं होगा, आराम से सॉल्व करो और खुद सॉल्व करो। अगर नहीं आ रहा है उसमें नंबर 0 भी आ रहा है, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं। अगर नंबर 0 भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कितना सीख रहे हो उस पर ध्यान दो। या असाइनमेंट कल दूंगा सो दैट आज शाम को थोड़ा सा रेफर कर लेना क्लिपर वाला। अभी क्लैम्पर तो हम पहुंचे ही, ठीक है। क्लिपर वाला थोड़ा सा रेफर करो। अगर पोटेंशियल मैं डायोड के सीरीज में लगाऊंगा तो कैसे वेवफॉर्म आएगा, अगर रेसिस्टर के सीरीज में मैं पोटेंशियल लगाऊंगा तो कैसे वेवफॉर्म आएगा, अगर डायोड को उल्टा करूंगा तो मेरा वेवफॉर्म कैसे आएगा, अगर पोटेंशियल को उल्टा करूंगा तो कैसे वेवफॉर्म आएगा। आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन का सर्किट बन जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ देखो, यहाँ पे पोटेंशियल चेंज किया और यहाँ पे डायोड का पोजीशन चेंज किया, वेवफॉर्म अलग आ रहा है। यहाँ पे डायोड का पोजीशन चेंज किया, वेवफॉर्म अलग आ रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल चेंज किया, वेवफॉर्म अलग आ रहा है। अगर पोटेंशियल को मैं सीरीज में डायोड के सीरीज में लगाऊंगा अलग वेवफॉर्म आएगा, अगर यहाँ पे इस पोजीशन पे मैं सीरीज में लगाऊंगा अलग वेवफॉर्म आएगा। मतलब इस वाले में ही आपका 4 सर्किट बन गया। अगर पोटेंशियल यहाँ पे लगा के यहाँ पे लगा के और 4 सर्किट बनेगा, मतलब 8 सर्किट का ऐसे ही बन गया। गेटिंग? और डायोड इस पोजीशन में, ये सिंपल क्लिपर है। डायोड इस पोजीशन में आपका क्लिपर सर्किट कैसे आएगा, ये